again? Sarthak, can you see the link for solving the questions? No, I think. No, sir. Yes, sir. Okay, so again I am sending the link. Click this and do the questions. It's just a test of previous knowledge. If you know all these things, you will be better understand the chapter that we are going to study. One or two questions you don't know doesn't matter. Simply you have to click and you will, the moment you will submit, you will get your score. And see, Udit has shared his score. Udit has shared he got 13 out of 15. So others also write down your score if you remember. Nikunj, others, Yes, sir. Adesha, doing better? The big pieces of soil in the floor. Sarthak, Yes, sir. doing the questions? Yes, sir. Okay, so I'll give you 2 or 3 more minutes. Yes, sir. है ना? All of you got the link? Rudraksh? Rudraksh Bhargav? You also put a nice photo बेटा. ये सिंबल नंबर क्या लगाते हो आप लोग? Done? Okay. So today who will navigate me? Akshita, are you hearing me beta? Akshita, unmute yourself. Akshita R. Krishnan. Can't hear me? Arthak, can you hear beta? Yes, sir. You will be guiding me better today. Okay? Yes, sir. If I ask you whether a screen is visible or not, so let us start today's class. Okay? I am presenting my screen. Right? Yes, sir. So, tell me, Sarthak, Yes, sir. what can be seen on the screen? Sarthak? Sarthak, unmute beta, tell me. Can you see the date? Sarthak? Sir, synthetic fiber PPT. Okay, date, this is the date. Can you see the date? 27/6. Yes, sir. Okay, good. So now stop beta. You will do later on. है ना? The questions. Now let's start. Today's Om Shri Sai Ram. We have already studied about fibers, types of fibers, monomers, polymers, right? Today let us learn more about synthetic fibers. Okay, we all know synthetic fibers are Sir, man-made fibers. Yes. sir, can you send the link once more? Once again, I'll send you it. Sir, Right? because it's in. I'll have to come out of this first. Stop sharing perhaps. No, if I minimize it, yeah. So, okay. Once again, I have sent the link. Right? Yes, Do sir. it. Got beta? Yes, sir. Got it? Now I'm coming to my PPT. Now can you see the PPT? Yes, sir. Right? So, yes, synthetic fibers. Synthetic fibers are man-made fibers. Synthetic fibers are made from different chemicals. Hence, each kind of synthetic fibers have their own properties. Synthetic fibers are more in length and are long-lasting. The only limitation, the only problem, that is synthetic fibers are, underline, poor absorbents of moisture and they catch fire easily. Two problems are better there beta. They don't absorb our sweat. पूरा बॉडी चिपचिपा हो जाता है. और दूसरी बड़ी गड़बड़ी है, इट कैचेज फायर इजिली. बहुत जल्दी आग लग जाती है इसमें.
So we have to be careful, है ना? In summer season, we should avoid wearing clothes made from synthetic fibers because we'll sweat a lot and sweat will not be absorbed. So cotton cloth will be more better in summer season. Okay. Synthetic fiber is a chain of small chemical units joined together, and you all know the small units are called, Sarthak, what do we call? Sir, Monomer. monomer. Okay. Large chain formed by many monomers is called Polymer. polymer. Good. The process of combining small monomers to form a large polymer is called, what do we call the process? Polymerization. Yes, Polymerization. polymerization. It is a two type of that. There are two type of polymerization: addition polymerization and condensation polymerization. And based on these, we get two type of polymers. One is called addition polymer, other is called condensation polymer. Okay. Next, now we'll come to know about one by one different type of fibers. So first one you have to study about rayon. Okay, in your NCERT book, you will find about rayon. Rayon is prepared from cellulose. And who will tell me? Adyasa, what is the monomer of cellulose? Glucose. Glucose. Very good. Yeah, ma'am. Remembered. Good, beta. Though cellulose is a natural polymer, it needs extensive chemical treatment to form rayon. Rayon is also called artificial silk. Why? Because it resembles silk. ये silk से बहुत ही मिलता जुलता है ना? And many a time we are cheated. We go to buy natural silk and people give us artificial silk, which is rayon, right? So you can differentiate by one thing, right? Take out one thread from the cloth. चुपके से कहीं से एक थ्रेड निकालो उसमें से जो कपड़ा दे रहा है तुम्हें, और उसको आप बर्न करने की कोशिश करो. अगर बर्न करोगे तो इट विल, इफ इट स्मेल्स लाइक बर्निंग हेयर, अगर बाल के जलने जैसी खुशबू आ रही है ना, और चैड मीट की तरह आएगी. मीट अगर आग में गिर जाए तो कैसी एक अजीब तरह की बदबू आती है, ऐसी बदबू आएगी, तब समझ लेना नेचुरल सिल्क है. और अगर प्लास्टिक जैसी स्मेल आ रही है जलने की तो समझ जाना क्या है, वो रेयन है. इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड इज कंफर्टेबल टू वेयर. इसलिए रेयन को हम मिक्स करके बनाते हैं कपड़े में. इट कैन बी डाइड इजिली इन विविड कलर, वेरियस कलर्स. ओके बेटा. प्रॉपर्टीज ऑफ रेयन. रेयन इज गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट. ये स्वेट को सोखता है, इसलिए हम इसके बैंडेज बनाते हैं. घाव पे बांधने के लिए जो बैंडेज होता है ना बेटा, उसमें हम रेयन यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, जो पानी घाव से बह बह के रिश्ता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है. ये इजीली डाइड एंड वोवन इनटू क्लॉथ. ड्रैप्स वेल. अच्छे से बंध जाता है. ड्रेपिंग अच्छे से हो सकता है, अच्छे से आप ड्रैप कर सकते हो कहीं भी. लस्टरस इन अपीयरेंस. दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क. लस्टरस है, बहुत चमकता है. यूजेज ऑफ रेयन. मिक्स विथ फाइबर ग्लास फॉर मेकिंग हेलमेट्स. जो हेलमेट हम पहनते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें इसको ग्लास फाइबर साथ मिक्स करके बनाते हैं हम. यूज टू मेक जैकेट्स एंड ट्रैक सूट्स. सर्जिकल ड्रेसिंग्स मैंने भी बताया आपको, है ना बेटा. घाव पे पट्टी करने के लिए जो पट्टी होती है, उसमें हम रेयन मिक्स करके बना सकते हैं. रीइंफोर्सिंग नायलॉन टायर्स. नायलॉन के टायर होते हैं, रीइंफोर्स करने के लिए रेयन के थ्रेड डालते हैं उसमें. अप होल्स्ट्री फॉर लग्जरी कार्स एंड ऑफिस एंड होम फर्निशिंग्स. कर्टेन्स बिकॉज इट ड्रेप्स वेल. कर्टन पर्दे बनाते हैं. ड्रेस मटेरियल बनाते हैं इसके बिकॉज इट इज सॉफ्ट, सिल्की एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट. ओके. नेक्स्ट वन इज Radhika. After rayon, which synthetic fiber? Nylon. Nylon. Good. Nylon. Nylon. Chemically, it is a polyamide, a polymer. It's a polyamide fiber. Nylon is a polyamide fiber. It is the strongest synthetic plastic material which can be molded to any shape. The strongest one is nylon. It is strong and easy to dye. Nylon fibers do not absorb water easily.
It is elastic in nature and hence highly durable. Okay, and its use is unlimited. Nylon. Properties of nylon: see, toughest elastic material, high tensile strength. Who will tell me what is the meaning of tensile strength? Pooja, Pooja, can you tell me? Anybody can try? Tensile strength. Sir, Yes, beta, बोलो. सर टेंसाइल मतलब कि जब अपन उसे खींचते हैं तो वो आसानी से ना टूटे. Yeah, it means ability to support heavy load. उस पे वजन डालें तो टूट ना जाए वो. समझ रहा है बेटा? टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंस हो जाएगा, तन जाएगा मगर टूटेगा नहीं. समझ रहे हो? Okay, slightly water absorbent, dries quickly. It can be molded into fibers, bristles, sheets, rods, tubes, and coatings. Resist oil. ऑयल नहीं चिपकता इसके ऊपर. ग्रीज, मॉथ अटैक नहीं करता इसको. कोई कीड़े वीड़े इसमें नहीं लगते. फंगस एंड अदर पेस्ट कैन बी मेड इनटू pellets और पाउडर. इज लस्टरस एंड इजी टू वॉश. सबसे पहले इसके विमेन स्टॉकिंग्स बने थे एंड विच वर वेरी वेरी पॉपुलर. यूज ऑफ नाइलॉन, स्ट्रेचेबल वियर्स, सीट बेल्ट्स. अभी गाड़ी में देखते हैं आप सीट बेल्ट लगाते हैं ना, नायलॉन के होते हैं. अपहोल्स्ट्री, रोप्स, रील थ्रेड, स्लीपिंग बैग्स, स्विमिंग वियर्स, रेनकोट्स, ट्रैक सूट्स, फिशिंग नेट्स एंड फिशिंग लाइन्स, मेकिंग sarees nowadays. Next one is polyester. Polyester, alcohol and organic acid both react together to make compounds called esters. Remember, polyesters. Ester is the monomer, and when many ester units join together, we get polyester. Which are the polymers? Polyesters come under the brand name of nowadays Terylene. नाम सुना होगा आपने, टेरिलीन का कपड़ा. किसी का क्लॉथ की दुकान है? हेलो, सर घर में सुना है इसका नाम. किसी की क्लॉथ की दुकान है, कपड़े की दुकान है बेटा किसी की, राघवगढ़ में या कुंभराज में या गुना में, कहीं भी है किसी क्या? नो सर. नहीं है, कोई नहीं ऐसा है. चलो ठीक है, कभी दुकान में जाना कपड़े की दुकान में तो बात करना बेटा. टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरीन एंड पॉलिएस्टर. प्रॉपर्टीज: ड्राइज क्विकली, राइट, easy to wash, does not shrink or stretch, forms a permanent crease. बार बार आपको आयरन करने की जरूरत नहीं है. धोने के बाद सूखने देने से पहले एक बार जोर से झटकार दो अच्छे कपड़े को and allow it to dry. Crease will remain there. Tough, lightweight and elastic, resistant to pests and chemicals. No chemical attack, no pest, nothing, no moth attacks these cloths. Okay, uses: making magnetic audio and video cassettes and floppy disks. आपने देखा होगा, अभी तो ऑडियो टेप वगैरह बंद हो गया. वीडियो कैसेट पहले हम लोग लाते थे, है ना, VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, और उससे हम लोग प्ले करते थे, फिल्म वगैरह देखते थे. फ्लॉपी डिस्क, नाउ इट हैज गॉन डेज, है ना, कंप्यूटर में लगाते थे पहले. याद है किसी को फ्लॉपी डिस्क? पढ़ा होगा कंप्यूटर में, आपने पढ़ा है बेटा कंप्यूटर साइंस में? यस. हाईली सुटेबल फॉर शूटिंग, सारीज एंड ड्रेपरीज, जो हम कपड़े में लपेटते हैं शरीर में सिर्फ. मिक्स विद फाइबर ग्लास फॉर मोल्डिंग इट इनटू हेलमेट्स, प्रोटेक्टिव शीट्स एंड हल्स इन बोट्स. उनको बनाते हैं हम. नेक्स्ट इज एक्रिलिक. एक्रिलिक इज ऑफन यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर वुल. ये वुल का सब्स्टिट्यूट है. नेचुरल वुल इज वेरी कॉस्टली बेटा, and acrylic wool is very very cheaper. Acrylic fibers are strong and wrinkle resistant. It is easy to wash and dries quickly. It is resistant to moths, oils, chemicals and deterioration on exposure to sunlight. Okay, properties of acrylic: no moth can attack it,
soft with crimps resembling wool, durable, light and washable, strong and stain resistant, also available in sheets, form of sheet also, can be dyed in different colors. So we can use acrylic in knitting. Wool is good for baby wears because they are soft, warm and washable. Used for making artificial fur, blankets, carpets. A transparent type of acrylic is used to cover automobile lights, lenses, surgical tools. देखते हैं आप मोबाइल के ऊपर में एक शीट लगाते हैं पतली सी, उसको पानी वाले से बचाने के लिए लगाते हैं ना बेटा, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन गार्ड। यस सर। हाँ, स्क्रीन गार्ड सर, ग्लास गार्ड। हाँ, ग्लास गार्ड। तो वो देखना प्लास्टिक का होता है, एक्रिलिक का बना हो सकता है, जो कि टूटेगा नहीं गिरने पर भी, है ना। ग्लास वाला टूट जाएगा मगर एक्रिलिक वाला टूटेगा नहीं आपको बेटा। ओके, नाउ एक पढ़ा होगा आपने पीईटी जार्स, पेट जार्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी? polyethylene terephthalate. Polyethylene terephthalate. Meanwhile, you can see your book also. Can you see the book, beta? सार्थक? यस सर। बुक दिख रहा है ना अभी आपको स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर वर्ड है पीईटी। मैं दिखाता हूँ आपको। पीईटी कहाँ गया भाई? पेट जार्स। देखो पीईटी, PET is a very popular familiar form of polyester. Its full form is polyethylene terephthalate. Okay, it is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. अंडरलाइन कर लो बेटा। हमारे किचन में पेट जार्स होते हैं, जार्स, ट्रांसपेरेंट जार्स होते हैं, जिसे मम्मी आपकी सॉल्ट, शुगर, डिफरेंट स्पाइसेज ये सब रखती हैं, है ना बेटा। अभी देखिए ब्लेंडेड फैब्रिक्स। आजकल पॉलिएस्टर, पॉलीज और एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। डू यू नो एस्टर्स आर दोज केमिकल्स व्हिच गिव्स अस स्वीट स्मेल इन फ्रूट्स। आप मैंगो का जो स्मेल करते हो, मैंगो की जो स्मेल आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ एन एस्टर। बनाना के अलग स्मेल है बिकॉज ऑफ एस्टर। And these esters nowadays you can prepare getting petrochemicals in the lab and these are the substitutes. आप देखते हो, आप जाते हो मार्केट, मैंगो फ्रूटी, fresh and juicy, but there is not a single drop of mango juice in that, right? Instead, what is there? An ester which gives the flavor of mango. वो होता है बड़ा मतलब, right? Okay, polyester is mixed with wool, that is called polywool. Polyester mixed with cotton, polycot. Mixed with terylene, mixed with cotton, terrycot. Okay, remember all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials from petroleum called petrochemicals. Okay, coming to our slide, blending fibers. Nowadays, you might have heard blended tea. 2 or 3 varieties of tea are mixed together and then we enjoy all the taste together. Similarly, 2 or more fibers are mixed together in ratio and we get blended fabrics. Terylene and cotton blend, that is called terrycot. Terylene and wool, what is it get? Terrywool. Polyester and cotton, what do we get? Polycot. है ना? Polycot is grease resistant. Acrylic and wool, they are also mixed together and used, and that then the wool becomes less expensive. So we can now get blended fabrics. आप दुकान में, कपड़े दुकान में जाना और बात करना, पॉलीकॉट, टेरिकॉट, टेरीरूबिया, है ना बेटा, टेरिकॉट, टेरिलिन प्लस कॉटन, टेरिकॉट, पॉलिएस्टर। ओके, now when we use synthetic fibers there are certain advantages. Okay, certain advantages of using synthetic fibers. What are these advantages? They are very strong beta.
इतना स्ट्रांग होता है कि एक्टिविटी कर सकते हो। बुक में दिया है, ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी। शुड आई शो यू दिस वन? कैन यू सी सार्थक? एक्टिविटी 3.1। सार्थक प्लीज बेटा अनम्यूट एंड टेल मी। सार्थक, Yes, sir. ये दिख रहा है एक्टिविटी 3.1? Yes, sir. हाँ बेटा, इसको करके देखना आप। कोई पुरानी सीढ़ी घर में होगी, उसमें 3 होल कर देना और धागे बांध देना, और फिर बीच में इसमें बांधना, फिर जिस धागा, कॉटन का धागा बांधना सेम लंबाई का है। फिर आप वूल बांध के देखना और एक नायलॉन बांध के देखना, विच विल सपोर्ट मोर लोड। यहाँ लोड लगा के देखना कितने लगाने से टूट जाता है वो। ओके, सो सिंथेटिक फाइबर्स आर synthetic fibers are right, so current slide, okay, right, see, very strong, retain their original shape, it comes back in its own shape, it is elastic, soft, we can dye in many colors, cost is very very less। पता है बेटा, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, हमारी 3 जरूरतें बहुत जरूरी है। 3 जीवन के 3 बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज जरूर से जरूर मिलना चाहिए। रोटी किस लिए? पेट भरने के लिए। कपड़ा किस लिए? शरीर ढकने के लिए, ताकि मौसम की मार से बच सकें। और मकान किस लिए? जंगली जानवरों, दुश्मनों और मौसम की मार से बचने के लिए चाहिए। अभी देखो बहुत तेज बारिश हो रही है हमारी तरफ यहाँ पर, मैं घर में बैठा हूँ तभी तो पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं तो कहाँ भागना पड़ता, किसी पेड़ के नीचे छिपना पड़ता है हमें। सर हमारे यहाँ पर भी बहुत बारिश हो रही है, कुमराज में अभी। कुमराज में भी हो रही है? गुड, बहुत तेज हो रही है सर, अभी हो रही थी, अब बंद हो गई। हुआ हमारे यहाँ बेटा, अभी लग रहा था कि बारिश की आवाज नहीं जाने लगे तुम्हारे साथ। ओके, लेकिन देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो। पता है ना बेटा, अगर गुलाब के पौधे में गुलाब होते हैं तो साथ में और क्या होता है? कांटे कांटे। तो ये जीवन के 2 पहलू हैं बेटा, है ना। टू पार्ट्स ऑफ कॉइन हमारे साथ है, सुख के साथ दुख भी आता है, दुख के साथ सुख भी आता है ना। क्या नाम था उनका? महादेव वर्मा के शब्दों में कहें तो, मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना। सुख दुख नदी के 2 किनारे हैं बेटा, जो कभी नहीं मिलते। जब सुख आता है तो दुख चला जाता है, जब दुख आता है तो फिर सुख चला जाता है, कभी नहीं दोनों मिलते, रात दिन की तरह हैं दोनों में। देखा कहीं मुलाकात होती है रात दिन के साथ में? रात और दिन दोनों मिलकर के बैठ के बातें करते देखा कभी? नहीं ना। ऐसे ही हमारे साथ बेटा, है ना। वी हैव सिंथेटिक फाइबर्स मेनी एडवांटेजेस बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस, एंड इफ यू नो दिस वी कैन यूज अकॉर्डिंगली। क्या है? डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, वी हैव डिस्कस इन द बिगिनिंग। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता बेटा, तो पसीना जो हमारे बॉडी का होता है वो सूखता नहीं है अच्छे से, रफ फील, थोड़ा इसका फीलिंग रफ होती है बेटा। कॉटन मुलायम फील होता है, लेकिन ये रफ फील होता है, तो हमें लगता है कि वो हमारे स्किन को रगड़ रहा है। It is dangerous to wear near fire, as you know they catch fire easily, they cannot be easily ironed as they melt very easily। इसको आयरन करने के लिए पता चला आयरन रखा और आयरन ही चिपक जाएगा उसमें, कई बार देखा होगा आपने घर में, है ना। पर्टिकुलरली जो गर्ल्स हैं, जो आपकी चुन्नी है बेटा, वो मोस्टली यू परचेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर वाला, है ना। कॉटन वाला बहुत कम खरीदते हैं आप लोग, क्योंकि उसकी क्रीज बार बार खत्म हो जाती है, बार बार आयरन करना पड़ता है आपको। और जो सिंथेटिक फाइबर वाला होता है, देखा होगा आपने, तरह से तो बिना आयरन करे भी चल जाती है। आयरन करना शुरू करो तो आप चिपक जाता है आयरन कई बार, बहुत कम हीट पे करना पड़ता है उसको। या फिर ध्यान रखो तो एक अखबार रख दो उसके ऊपर, फिर आयरन चलाया करो, है ना बेटा। अगर तेज गर्मी रहेगी ना तो कम से कम तुम्हारा चुन्नी या कपड़ा जलेगा नहीं आपका, ठीक है। एक दूसरा कपड़ा रख दो या एक न्यूज़पेपर रख दो उसके ऊपर, फिर आयरन करो तो दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अवर प्लास्टिक, एंड वी ऑल नो प्लास्टिक अबाउट, है ना। इट हैज इन्वेडेड आवर होल लाइफ। इफ यू सी ऑल अराउंड, आसपास नजर घुमा के देखो, आपको कई सारे प्लास्टिक कंटेनर आपके घर में रखे मिल जाएंगे। अभी आपके पास पेन होगा,
ये पेन भी देखो आप, ये प्लास्टिक का केस पूरा है ना बेटा। प्लास्टिक मिल्क जूस बॉटल्स, अपने यहाँ दूध का पैकेट आता है सांची मिल्क, किसमें आता है? प्लास्टिक के पैकेट में आता है। प्लास्टिक लंबर, डेकिंग डॉक्स, प्ले सेट्स नाउअडेज मेनी, अब तो स्कूलों में ऐसे ही प्लास्टिक वाले ही खिलौने ला कर रखते हैं केजी पार्क में, और बच्चे खेल लेते हैं। न्यू बॉटल्स, प्लास्टिक डिटर्जेंट बॉटल्स, बकेट्स, कंटेनर्स, है ना। स्टेडियम सीट्स आजकल जितने भी बनाने लगे हैं सब के सब प्लास्टिक के बनाने लगे हैं, बिकॉज दे आर लाइट वेट एंड ड्यूरेबल। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक बेटा, thermoplastic and thermosetting plastic. Thermoplastics are soft and flexible. They are not elastic like rubber and steel springs. They melt on warming and regain their shape on cooling. So you can change their shape again and again. Thermoplastics can be drawn into fine fibers, molded to any desired shape, or stretched or spread as sheets. Some of the thermoplastics you may note down: nylon, polyester, पॉलीइथिलीन, जिसको पॉलीथीन भी बोलते हैं। इथिलीन को शॉर्ट में नाम आईपीसी नेम इथीन है, पॉलीथीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, एक्रिलिक, पॉलीयूरिथेन, पॉलीप्रोपिलीन, जिसको पॉलीप्रोपिन ही बोल सकते हैं, राइट, शॉर्ट में पीपी बोलते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन पीटीईई, ओके। टेट्राफ्लोरोइथीन और इथिलीन, दिस इज यूज्ड एज नॉन स्टिकी कोटिंग्स ऑन आवर कुकिंग वेयर्स। अभी आप मम्मी से बात करना घर में किचन में, तो एक पैन होगा या कढ़ाई होगी, वो नॉन स्टिकिंग होगा, है बेटा किसी घर में? हेलो, यस सर। यस सर। नॉन स्टिक, यस सर। पानी डालोगे ना उसके ऊपर, पानी भी फिसल नीचे गिर जाएगा। सर ब्लैक कोटिंग वेयर, ऑयल चिपकता नहीं उसमें है, बहुत कम ऑयल में हम खाना बना लेते हैं। बट ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक है, तो क्या होगा, आपको जबरदस्ती ज्यादा गर्म नहीं करना है तवा को। कुछ जल्दी से हल्का गर्म हो तो सामान डाल दो, तेल डाल दो या जो भी डालना है सामान डालो, नहीं तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, वो मेल्ट होकर के जल्दी खत्म हो जाएगा और ये जल्दी से उखड़ जाता है। इसलिए देखते हो घर में होगा वुड का होगा उसमें, है ना, लेडल है बेटा, जो उसमें खाना पकाते हैं चलाने के लिए जो होता है लेडल, यस सर। है ना, लकड़ी के यूज करते हैं। नहीं तो वो लेयर जो टेट्राफ्लोरो, हाँ बेटा वो घिस जाएगा, फिर आपको कोई काम नहीं आएगा बर्तन वो जिसके लिए खरीदा है आपने। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, प्लास्टिक टेबल एंड चेयर, जितने भी हम लोग लेते हैं आजकल थर्मोप्लास्टिक लेते हैं, क्योंकि दीज आर रिसाइकल भी कर सकते हैं इसको बेटा, दे कैन बी रिसाइकल। ओनली सिर्फ जो काला काला कलर वाला होता है ना, वो नहीं ले जाता रिसाइकल के लिए। प्लास्टिक फूड कंटेनर्स, प्लास्टिक टॉयज बनाते हैं, प्लास्टिक स्पून्स एंड फोक्स, प्लास्टिक कप्स, प्लास्टिक डेली यूज आइटम्स। व्हाई? बिकॉज दीज कैन बी रिसाइकल्ड इजीली। Thermoplastics can be recycled beta, so they do not cause pollution. Simply we have to collect them and give it to some valuable sources from where it can go for recycling. Thermosetting plastics now. Second part. They are hard and rigid. Example is bakelite and melamine. आपके भी घर में जहाँ बैठे हो स्विच बोर्ड होगा, है ना, ये बोर्ड स्विच बोर्ड हार्ड होता है और ये मेल्ट भी नहीं होता, and it is a bad conductor of electricity. So that is thermosetting plastic. अगर हम थर्मो का बना देंगे तो कई बार स्पार्क होता है, ये मेल्ट हो सकता है और कैच फायर हो सकता है, आग लग सकती है, इसमें आग लगने के चांसेस है ना। थर्मोसेट्स शॉर्ट में बोलते हैं इनको, कैन बी मोल्डेड टू सेट इट एनी शेप बट इट कैन नॉट बी रीमोल्डेड बेटा, दोबारा मोल्ड नहीं कर सकते, एक बार जो शेप दे दिया आपने वो परमानेंट रहेगा क्योंकि मेल्ट ही नहीं होता है। It is dark in color, mostly hard, resistant to heat and electricity. Okay? It is being widely used for the handle of kettles and pans. Handle में लगाते हैं ज़्यादातर। Earlier black telephone sets. पहले जब टेलीफोन था तो है ना, that has become history. Now we are having mobiles. हम बात करते हैं। Electric switches, electric lamp holders, pins and plugs were made from thermosetting plastics. एग्जाम्पल देखो, थर्मोसेट हैंडल्स,
ये सारे जो घर में बहुत सारे चीजें होंगे आपके, उनके हैंडल में लगे होते हैं थर्मोसेट प्लास्टिक। सर हमारे यहाँ पर है ये ऐसे। थर्मोस की जो इसका इसका जो ड्रेस होता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ मेलामाइन, इट्स अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें आग ही नहीं लगता, आग पकड़ता ही नहीं है, फायर रेजिस्टेंट होता है ना। और आजकल किचन के फ्लोर पे इसी कोटिंग कर देते हैं ताकि वहां पर आग ना लगे। मेलामाइन वेयर्स, बर्तन आजकल आ गए मेलामाइन वाले, इसमें आग नहीं पकड़ता। इलेक्ट्रिक पिन जो ब्लैक पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ thermosetting plastic. Now just let us see beta, what is the difference between thermoplastic and thermosetting plastic? Why do they behave differently? So this is because of their monomer arrangement. In thermoplastics there is a chain of linear chain, no cross link. See, you can see linear chain हमारा देखो सीधा सीधा chain है. Polymer chains in the thermoplastics like polythene are linear, having no cross link. But so these can slip one over other, and that is why they can be melted and given another shape. ठीक है बेटा? But in thermosetting plastics, the units are cross linked. देखो 3 dimensional cross link होते हैं, देखो ध्यान से, right? They do not slip over one another, so they cannot be re-melted and remolded and given another shape. Understood बेटा? तो डायग्राम बना लेना ये दोनों, है ना? Arrangement of monomers in thermoplastic and arrangement of monomers in thermosetting plastics. If I want to show you, let us see. Yeah, where is that? Google Meet, is it sharing? I cannot go in that. Okay, what do you see on the screen beta? PPT na? No, Yes, sir. PPT. Yes, Good. sir. Slide, so from current slide. Okay, so Mr. Beta, any question regarding this arrangement of monomers in thermoplastic and thermosetting plastic? Right? इसमें क्या स्ट्रेट चेन है, इसमें क्या है क्रॉस लिंक है बेटा, बस इतना याद रखना है, ठीक है? डिफरेंस आएगा जरूर लिखना इसको। Properties of plastics: resist corrosion. Corrosion means they are not easily attacked by moisture and air, so they do not get rusted. अभी देखा है प्लास्टिक वाले पेन में जंग लग गया हो, लेकिन वही आपका मेटल वाला पेन होगा तो क्या होगा, जंग लग जाएगा उसमें। रेजिस्ट हाई टेम्परेचर भी काम कर लेते हैं बेटा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं ना उनको काम लगा। इंसुलेट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलास्टिक, they are they can be recycled. Thermoplastics बेटा याद रखना, thermosetting नहीं होते हैं, thermoplastics can be recycled. Not reactive to chemicals and water, केमिकल का तो असर ही नहीं पड़ता है। Why? You can store acids in plastic containers. प्लास्टिक के बर्तन में आप एसिड को स्टोर करो। जनरली एसिड अगर मेटल में रखो तो क्या होगा, मेटल में होल हो जाएगा और एसिड बाहर निकल जाएगा आपका। बट वी कैन स्टोर केमिकल्स, वाटर इन प्लास्टिक कंटेनर। वाटर रेजिस्टेंट, पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। सॉफ्ट व्हेन हॉट, थर्मोप्लास्टिक्स पर्टिकुलरली जब गर्म कर दे तो सॉफ्ट हो जाता है एंड वी कैन चेंज द शेप आल्सो। बट very sorry, plastics and the environment. Beta, this is not good for our environment, particularly when we use without thinking, without knowing that whether we need the use of plastic or not, we are using, and that's why we are facing the problem nowadays. Recycling waste plastic is very important. It may kill many animals as well as polluting earth, है ना? आपने सुना होगा कई गाय, हम लोग घर में क्या करते हैं, घर में जो सब्जी वगैरह के छिलके वगैरह होते हैं ना बेटा, और फ्रूट्स के छिलके वगैरह वो पॉलीथीन में बांध के रोड पे फेंक देते हैं और गौ हमारी है वो खा लेती हैं। कई गायों को ऑपरेशन किया, पेट में से उनके कितना 70-80 किलोग्राम तक प्लास्टिक निकला और कई तो मर जाती हैं बेटा, है ना? सो वी शुड बी वेरी केयरफुल, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक हियर और देयर।
Plastics are non-biodegradable. They do not get decompose easily. है ना? अब देखिए एक टेबल है बुक में, ध्यान से देखना बेटा, आप लोग बुक है देखना ध्यान है ना? मटेरियल्स आर गिवन एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रिसाइकल. ध्यान से देखना. पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स दिख रहा है बेटा? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर. बता यस देना. सर. है ना? मैं बुक दिखा रहा हूँ तो बुक दिखना चाहिए आपको. तुरंत बताना बेटा. एक को मैं ऐसी ड्यूटी दी है, मैंने सार्थक को दी है. पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, घर में कुछ खाने बच जाते हैं, वो 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 सप्ताह में बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा बेटा. सड़ जाता है, गल जाता है, नेचर में मिल जाता है. पेपर 10 to 30 days, इट इज बायोडिग्रेडेबल. कॉटन क्लॉथ 2 to 5 months, इट इज बायोडिग्रेडेबल. वुड 10 to 15 years, बायोडिग्रेडेबल. वुलन क्लॉथ अबाउट a year, बायोडिग्रेडेबल. बट टिन का कैन जो आप पी लेते हो फेंक देते हो, एल्यूमिनियम and other metal cans 100 to 500 years, so they are called non-biodegradable. And plastic bags several years, आप काउंट नहीं कर पाओगे बेटा. इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. है ना? आगे देखिए, व्हाट इज द हार्म ऑफ यूजिंग प्लास्टिक. ध्यान से देखो बेटा, है ना? प्लास्टिक इज ए मिनाक. सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल years to decompose, you may underline it is not environment friendly. It causes environmental pollution. Besides, many people burn the plastic बेटा, जला देते हैं रोड पे जमा करके. It is very very harmful. The burning process is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process, underline, it releases lots of poisonous fumes. फ्यूम निकलते हैं, है ना बेटा? धुआं निकलता है इसका, पॉइजनस होता है, इनटू द एटमॉस्फेयर, कॉजिंग एयर पोल्यूशन, व्हिच इवन कैन कॉज कैंसर. राइट? सो अवॉइड योर प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल. जितना हो सके हमें प्लास्टिक का यूज अवॉइड करना चाहिए. राइट? Very few years ago, scientists have discovered फोटोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स. ध्यान दो बेटा, देखो टेक्नोलॉजी ने प्लास्टिक दिया हमें, है ना सार्थक? हाउ डू वी गेट प्लास्टिक? फ्रॉम टेक्नोलॉजी. साइंस ने दिया हमें, तो सॉल्यूशन भी कौन देगा? इफ वी आर गेटिंग प्रॉब्लम ड्यू टू प्लास्टिक, द सॉल्यूशन विल बी आल्सो गिवन बाय द टेक्नोलॉजी. सो वन टेक्नोलॉजी इज दैट फोटोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स. इस पे जब लाइट पड़ती है, सनलाइट, तो ये डिकम्पोज हो जाता है और इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू रॉट. सड़ने में टाइम लेता है. मगर रिसेंटली एक और देखो डेवलपमेंट है, एंड ट्राई टू सर्च मोर सर बेटा, हाउ कैन वी गेट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक. जैसे पेपर हमारा है, क्लॉथ है, ऐसा प्लास्टिक मिल जाए और सारा प्रॉपर्टी के साथ, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. साइंटिस्ट डेवलप्ड बायोपॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. They rot very easily. Plastics made from corn starch. देखो जो भुट्टे खाते हैं ना, खाते हैं ना बेटा भुट्टे? यस सर. अभी सीजन आ रहा है. यस सर. यस सर. मिलेगा अभी, रोड किनारे लोग पका पका बेचते हैं ना ठेले के ऊपर. तो उसका कॉर्न में जो स्टार्च होता है, इससे बनाने लगे हैं. डिजॉल्व्स रैपिडली इन वाटर, वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, तो काम अपना हो जाएगा, है कि नहीं? ओके. As a responsible citizen, remember the 4R principle. 4R, reduce. जितना हम कम से कम यूज करें पर प्लास्टिक का. रीयूज, बार बार यूज करें. अगर एक थैला है प्लास्टिक का, तो उसको हम बार बार यूज करते, वो फट ना जाए. रिसाइकल, एज आई टोल्ड यू, द thermoplastics are recyclable. एंड रिकवर. रिकवर मतलब गुम हो गया तो ढूंढ के लाओ, ढूंढो. प्लास्टिक का कोई आया था सामान, मम्मी ने रख दिया, ढूंढ के निकाल लो, उसका यूज करो बार बार. रिकवर, फाइंड आउट. ओके. डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बिकॉज वी आर लिविंग इन द एनवायरमेंट एंड अनलेस अनटिल एनवायरमेंट. अभी देखो कैसा एनवायरमेंट है, बाहर निकलने से डर लग रहा है हमें, बिकॉज ऑफ यू ऑल नो हु इज दिस कल्प्रिट. सार्थक?
सर। आज हम घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अच्छे से, किसके चलते? सर कोरोना। कोरोना की वजह से। वो एक वायरस है बेटा। ऐसे ही एक तो वायरस, और हम अपने कर्मों से, अपनी गलतियों से अपने एनवायरनमेंट को क्या करते जा रहे हैं? पॉल्यूट करते जा रहे हैं। सो प्लास्टिक का यूज जब तक एसेंशियल नहीं हो नहीं करना है हमें, ठान लो। अभी क्या करना है, हम बाजार जाते हैं सब्जी लाने के लिए, खाली हाथ चले जाते हैं। अरे भाई ले लो कपड़े का हाथ में, क्या दिक्कत है? क्लॉथ का पेपर का कपड़ा ले लो, क्लॉथ ले लो, बैग ले लो, उसमें लाए हम। चलो, ओवरऑल यू विल हैव टू थिंक बेटा, बिकॉज द फ्यूचर लाइज अपॉन योर शोल्डर्स। अब हम लोग क्या है, हमारा चला चली का बेला है, कब्र में पाँव लटके हैं, कभी निकल लेंगे। बाकी आपको जीना है इसी एनवायरनमेंट में, तो आपको सोचना है थोड़ा कि हम एनवायरनमेंट को कैसे अपना फ्रेंड बना कर रखें। थैंक्स एंड साई राम। ओके, सो दैट इज ऑल about we should be fiber wise beta, be fiber wise, do not throw plastic bags in the water bodies or on the road। जो हम हमेशा करते हैं, क्या करते हैं, ये नालों को बंद कर देते हैं, चौक कर देते हैं, नाले का पानी बाहर बहने लगता है, मच्छर फैलते हैं, बीमारियां बढ़ती है। टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग while going for shopping, try to minimize the use of plastic materials, use a steel lunch box instead of a plastic one। प्लास्टिक की धीरे धीरे करके बेटा जितना हम कम कर सकते हैं कम करें हम। ओके, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग नाउ। हाउ मेनी ऑफ यू जॉइन? 15। और भाग गया, बीच में छूट गया, क्या हुआ? ओके बेटा, कैन यू सी मी नाउ ऑन द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. is more, I think 46. So doesn't matter बेटा। नेक्स्ट पीरियड में क्वेश्चंस देख के आना आप लोग। सी द क्वेश्चंस एट द चैप्टर एंड, we'll discuss the questions and if no problem then we will start next chapter। Okay? Yes, sir. So shall we chant Shanti Path? Raise your hands। Om शांति शांति शांति। साई राम। Sairam, sir. Sairam, sir. Sairam, sir. Sairam, sir. साई राम, Sairam, sir. साई राम, साई राम। Okay, leave one by one बेटा।